Dear children, welcome in your English class. Today I will teach you the third chapter of your English book Rainbow. The title of the chapter is The Right Choice. Today the learning outcome is, students, you will be able to comprehend the text and speak small sentences in your conversation. उम्मीद है आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स लेकर बैठे होंगे. I am going to ask some questions. Be ready to give answers. But before that, solve this puzzle. There is a house. One enters it blind and comes out seeing. वो कौन सी जगह है जहां लोग जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब आते हैं तो दुनिया को देख सकने की क्षमता रखते हैं. My next question is, what do you want to become and what do you like to do? Give me the answers. You like painting. Very good. And you? You like drawing, sketching and gardening. And you? Learn. Very good. You want to learn the study of physics. Very good. बच्चों, in this story there is also the same thing, and if we want to do the thing which interests us, then we can give our 100% and we can get success, and we can do everything with our utmost potential. So is the case with the character Mukesh here. You can see this is our chapter, The Right Choice, and there is a picture. There are 4 characters in this story. The one is Rakesh, a student of class 8 as you are, and the second one is Mukesh, preparing for board examination. A Indian woman wearing a sari. Which color of sari is this? Green. She is mother of Mukesh and Rakesh. And the man is Mr. Yadav, community helper. He is an electrician. यहाँ मुकेश जो बनना चाहता था वो बना, और कैसे उसने अपनी इस इच्छा को अंजाम दिया इस स्टोरी में आप देख सकते हैं. Now let us read our chapter. You can open the page number 19 of your textbook. The right choice मतलब सही choice. अपनी choice होती है ना. If you are choosing your career as your livelihood also, so you can do your better and better, and you can give your best for the livelihood. Here I am going to read the paragraph. Try to repeat after me. Rakesh was very excited. It was his last day of examination. His vacation was about to begin. He walked back home cheerfully. As soon as he reached home, he put his bag in a corner and ran towards his brother's room. Children, you can see Rakesh was very excited. Excited means उत्साहित. Rakesh was था क्या? Very बहुत excited. Rakesh बहुत excited था. It was क्या था उस दिन? Last day of his examination. जैसे आप लोगों का जब एग्जामिनेशन का लास्ट डे होता है तो उस दिन आप बहुत चीयरफुल होते हैं, हैप्पी होते हैं. क्यों? अरे अब तो पेपर खत्म, वी कैन डू एनीथिंग विथ व्हाट वी लाइक.
तो इसी तरह राकेश wanted to live happily and spend his time very happily. After that, it was his last day of examination. His vacation, उसके जो vacation थे was about to begin. उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी. जब आपकी छुट्टियां शुरू होती हैं तब पहले से प्लानिंग होती है ना. I will go there, I will go to the house of my Nani, I will go to visit the Taj Mahal and many more monuments of the India. And so is the case with Rakesh. राकेश के मन में बहुत खुशी थी क्योंकि उसकी वैकेशन शुरू होने वाले थे. He walked back. वो है walked मतलब चलकर आया. back कहाँ? home. घर पे चलकर आया. cheerfully बहुत खुशी के साथ, बहुत खुश होते हुए, प्रसन्नता के साथ वो अपने घर वापस आया. कहाँ से? विद्यालय से. वेरी गुड. As soon as, जैसे ही वह पहुंचा. कहाँ पहुंचा बच्चों? He reached, घर पहुंचा. home. As soon as he reached home, जैसे ही वह घर पहुंचा. He put his bag, उसने अपना बैग कहाँ रखा? In a corner, एक कोने में रख दिया. And ran towards his brother's room, और दौड़कर कहाँ, किसकी तरफ गया? अपने भाई के रूम की तरफ. यहां लिखा है ब्रदर. ब्रदर मीन्स भाई. ये एपोस्ट्रोफी का चिन्ह है बच्चों, और उसके बाद एस लगा हुआ है. जहां भी आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस में इस तरह का एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसका मीनिंग होता है पोजीशन. मतलब ये तेरा है, ये मेरा है, जिस तरह से हम बोलते हैं ना, तो उसी तरह ब्रदर का यहां इसका मीनिंग होगा भाई का. क्या चीज? रूम. तो राकेश दौड़कर गया अपने भाई के रूम में. नेक्स्ट लाइन इज राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर. His exams are not yet over, his mother said. Rakesh returned to his room sadly. His brother Mukesh was preparing for the board exams. His parents did not want Mukesh to be disturbed. Here the line is Rakesh. राकेश को क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर कॉमा. कॉमा जब कहीं लगाते हैं सेंटेंस में तो हम वहां पॉज देते हैं. रुकने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं. राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर. अपने भाई को डिस्टर्ब नहीं करो. डिस्टर्ब मीन्स क्या करना? परेशान करना. लेकिन उसकी मम्मी कह रही है ये बात कि राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर. अब यहाँ बच्चों देख सकते हैं आप, डोंट लिखा हुआ है. ये डोंट का क्या मीनिंग है? ये कॉन्ट्रैक्शन है एक्चुअली. व्हेन वी यूज, बहुत जल्दी बोलना शुरू करते हैं, किसी चीज को बहुत जल्दी से बोलने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, तब दो वर्ड को मिला करके एक नया वर्ड बन जाता है जो बहुत आसानी से जल्दी से बोला जा सकता है. जैसे डू नॉट को मिला करके यहां बना डोंट. तो ये कॉन्ट्रैक्शन है. इसका मीनिंग, इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं डोंट बी और डू नॉट बी. डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर. हिज एग्जाम्स, उसके पेपर या उसके परीक्षाएं, आर नॉट येट ओवर, अभी तक ओवर नहीं हुई हैं, मतलब खत्म नहीं हुई हैं. येट मीन्स अभी तक. हिज मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा. राकेश की मम्मी कहती है अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि यदि आप डिस्टर्ब करते हैं तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से नहीं कर सकता है. राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली. अब वो बहुत दुखी मन से वापस आ गया. कहाँ? अपने रूम में. क्यों भाई दुखी हो गया? उसके तो पेपर खत्म हो गए थे. वो तो अपने रूम से भाई के रूम में जा रहा था कि भाई के साथ खेलेंगे. लेकिन हुआ क्या? मम्मी ने डांट दिया. मम्मी ने जब डांटा तो कहाँ आ गया? वो वापस आया. रिटर्न टू हिज रूम सैडली, और परेशान होता हुआ, दुखी होता हुआ अपने रूम में वापस आ गया. हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. उसका भाई जो था
उसका नाम था मुकेश। राकेश और मुकेश ये दो भाई यहाँ पर हैं। और तो मुकेश क्या कर रहा था, बड़ा भाई चूंकि था तो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट, उनके पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे, मदर नहीं चाहती थी ना फादर चाहते थे, क्या कि मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड, मुकेश को परेशान किया जाए या उसे तंग किया जाए, उसको केवल पढ़ने देना उनकी एक प्रायोरिटी बन गया था उस टाइम। और हर एक घर में यही होता है कि एक टेबल दे दी जाती है, टेबल लैंप दे दिया जाता है, बच्चा रात को काफी लेट नाइट तक पढ़ता है और आराम से उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, अपनी पढ़ाई कर सके, इस तरह का उसको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है। ये हर एक घर में ऐसा ही लगभग होता है। अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश। हिज मदर he answered and rushed to her room. What is it, mother? He asked curiously. The table lamp in Mukesh's room is not working. He needs it. Go and call the electrician, she said. देखिए बच्चों, यहाँ कॉमा लगा है और ये चीज जो है ये है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास भी एक तरह की पंक्चुएशन होती है जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और ये ऊपर से ऐसे और ऐसे यहाँ ऊपर गोल गोल बना के ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर उनकी मम्मी ने कहा क्या, राकेश, आवाज लगाई जोर से। तो राकेश बोला चौकन्ना होके, यस मदर। यहां पर भी इन्वर्टेड कॉमास में जब रिपोर्टेड स्पीच हमारे सामने आती है बच्चों, और जो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जब आप पढ़ेंगे उसमें जो स्पीच जिसके द्वारा कही गई है एज इट इज प्रेजेंट की जाती है, तो वो जो सेंटेंस होता है उसको हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही रखते हैं। और इन्वर्टेड कॉमास के रखने के यहाँ पर आप देख सकते हैं राकेश है, जैसे राकेश को बुलाया तो क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क भी अंदर आएगा, उसके बाद जो है बाहर इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो बंद होंगे। यस मदर, उसने कहा हाँ मम्मी। ही आंसर्ड एंड रस्ड टू हर रूम, और अपनी मम्मी के रूम में चला गया तेजी से। रस्ट मीन्स तेजी से जाना। व्हाट इज इट मदर, ही आस्क्ड क्यूरियसली, उसने बहुत ही उत्सुकता से क्या पूछा, व्हाट इज इट मदर, ये क्या है मम्मी। तो उसकी मम्मी ने क्या बोला, देखो बच्चों, द टेबल लैंप इन मुकेश रूम, यहाँ मुकेश के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब मुकेश का रूम का क्या चीज खराब है, टेबल लैंप इज नॉट वर्किंग, क्या काम नहीं कर रहा है, मुकेश के रूम का टेबल लैंप इज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, और पढ़ाई करने के लिए टेबल लैंप की जरूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन क्या काम करता है बच्चों, बिजली का कोई चीज खराब हो जाती है तो उसे जो रिपेयर करता है वो इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। जिस तरह एक हम प्लम्बर को बुलाते हैं, नल यदि हमारा खराब हो जाए या पानी कहीं से टपक रहा हो तो ये कम्युनिटी हेल्पर ही होते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन जो है उसको बुलाने के लिए मम्मी कहती है, शी सेड। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, ही इज सो गुड एट इट, राकेश सेड। राकेश ने क्या कहा, मदर कांट मुकेश, मतलब ये भी कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों। देखिए यहाँ पर भी कैन नॉट को जब जल्दी से बोलने की कोशिश की गई तो यहाँ कांट कर दिया गया। मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, क्या मुकेश अपने आप इसे ठीक नहीं कर सकता है। ही इज सो गुड, वह कितना अच्छा है, कितना अच्छा है कि वो उस चीज को ठीक कर सकता है, इतना अच्छा है मीन्स। तो ही इज सो गुड एट इट, मतलब वो बिजली का काम ठीक कर लेता है, राकेश ने कहा। अब मम्मी क्या कह रही है देखो बच्चों, डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, शी सेड sternly. Overhearing this conversation, Mukesh came out and said, oh mother, please let me try, I will not take more than half an hour.
डोंट आर्ग्यू राकेश, राकेश को मम्मी ने डांटा और कहा काम वही करो जो मैंने तुमसे कहा है। डू एज यू आर टोल्ड, क्या करो जो मैंने कहा है। शी सेड स्टर्नली, बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही कठोरता से मम्मी ने राकेश को इस तरह से डांटा और कहा कि आर्ग्यू मत करो, बहस मत करो। ओवर हियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन, ओवर हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनना, और ओवर हियरिंग सुने को अनसुना कर देना। इसका मीनिंग यहां पर ये है, दिस कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप या बातचीत, इस बातचीत को ओवर हियर करते हुए, अनसुना करते हुए मुकेश केम आउट, अपने रूम से केम आउट, बाहर आ गया। और क्या कहता है बच्चों, और उसने कहा ओह मदर प्लीज लेट मी ट्राई। देखो बच्चों, ओ, यहाँ ओ का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस की जगह यहाँ पर क्या है ये बेटा, इस डंडे के नीचे जो बिंदु रखा गया है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या, विस्मय आदि बोधक, विस्मय प्रकट करते हुए या हृदय की भावनाओं को तुरंत एकदम से प्रकट करने की जो कला होती है, जब उसको हम इंग्लिश में कोई साइन देते हैं तो इस तरह के ये साइन एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा जाता है, जैसे आह, उफ, आउच। जब हम लोग इस तरह अपने मुंह से बोलते हैं तो इसका मीनिंग है कि सडन फीलिंग हम अपने हृदय की व्यक्त कर रहे हैं। तो वो बाहर निकल के आया मुकेश और क्या कहता है, मदर प्लीज लेट मी ट्राई, मुझे ट्राई करने दो, कोशिश करने दो, किस चीज की, टेबल लैंप ठीक करने की। आई विल नॉट टेक, मैं क्या नहीं लूंगा, मोर देन हाफ एन आवर, HOUR, आर है बच्चों मतलब घंटा, आधे घंटे से ज्यादा मैं समय नहीं लगाऊंगा, मैं इससे ज्यादा समय ना लगाते हुए इसको उससे कम समय में ही ठीक कर दूंगा। एक्चुअली मुकेश वॉज वेरी एक्सपर्ट इन रिपेयरिंग द इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड गैजेट्स एक्चुअली। तो वो कहता है अपनी मम्मी से, उसकी मम्मी ने फिर आगे क्या कहा ये हम टेक्स्ट के अगले भाग में पढ़ेंगे। यहाँ जो हमने पढ़ा वो यह पढ़ा कि राकेश बहुत खुश था क्योंकि उसके एग्जाम हो चुके थे एंड ही was going to the room of his brother, लेकिन मदर स्कोल्डेड हिम एंड क्या कहा मदर ने कि राकेश रूम का जो टेबल लैंप है वो खराब हो गया है, मुकेश को उसकी जरूरत है, गो एंड कॉल इलेक्ट्रीशियन। तो मुकेश की यहाँ पर जो है ना ये एंट्री होती है, मुकेश ये कहता है कि मैं ही ठीक कर दूंगा। तो यहाँ इससे पता चलता है मुकेश वॉज वेरी एक्सपर्ट इन रिपेयरिंग द हाउस होल्ड गैजेट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इस टेक्स्ट में आए हुए कुछ नए शब्दों से यहाँ आपका परिचय कराया जा रहा है। लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी। एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स उत्साहित, उत्साहित किसी चीज को करने की बहुत उमंग होना, उत्साह होना, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, एक्साइटेड बोलते हैं। चीयरफुली हंसमुख, यहां पर ये चंद्रबिंदी है, हंसमुख या प्रसन्नता पूर्वक। वेकेशन छुट्टी। डिस्टर्ब मीन्स परेशान। रिटर्न, रिटर्न मीन्स वापसी। सैडली अफसोस की बात है मतलब दुखी होते हुए। रिपेयरिंग मरम्मत। नेक्स्ट इज सीरियसली गंभीरता से। नेक्स्ट नीड्स, नीड्स मीन्स आवश्यकता या जरूरत। आर्ग्यू, जैसे कि राकेश को डांटा गया था कि आर्ग्यू मत करो मतलब बहस मत करो। ओवर हियरिंग सुना अनसुना करना, मुकेश ने सुना अनसुना किया था क्या चीज, कॉन्वर्सेशन बातचीत। यहाँ ये जो नए वर्ड्स हैं इनको आप बार बार रिपीट करेंगे और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने जाना कि इलेक्ट्रीशियन कम्युनिटी हेल्पर होता है, इसी तरह और भी कई हेल्पर्स हमारे आसपास सोसाइटी में पाए जाते हैं। इनसे रिलेटेड एक्टिविटी है,
आइए हम इसको करते हैं। एक्टिविटी अबाउट कम्युनिटी हेल्पर्स। यदि हमारे घर में कोई चीज खराब हो जाती है तो क्या हम उस समय किसको बुलाते हैं, ये इसमें दर्शाया गया है। माई टेबल इज ब्रोकन, आई विल कॉल। अब टेबल टूट गई है तो क्या डॉक्टर को बुलाया जाएगा? नहीं, किसको बुलाया जाएगा? कारपेंटर को। माई टेबल इज ब्रोकन, आई विल कॉल द कारपेंटर। मैकेनिक को नहीं बुलाया जाएगा और ना ही टेक्नीशियन को बुलाया जाएगा। माई टैप इज लीकिंग, इट्स लेट्स कॉल। टैप जो होता है नल, खराब हो जाए तो हम किसे बुलाते हैं? प्लम्बर को। यहां बच्चों बी लेटर साइलेंट है इस वर्ड में। माई बाइक्स हॉर्न हैज गॉट स्टक, आई विल गो टू द कारपेंटर, टू द मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन। हम मैकेनिक के पास जाएंगे। देयर इज अ प्रॉब्लम इन माई फोन, आई विल गो टू द डीलर और टू द मैकेनिक, टू द फोन रिपेयर टेक्नीशियंस। यस, फोन जो रिपेयर करता है उस टेक्नीशियन के पास जाएंगे। आई एम सिक, आई विल कॉल। हम बीमार होते हैं, यदि मैं बीमार पड़ूं तो क्या डॉक्टर के पास ही तो जाऊंगी? यस, यू आर राइट, डॉक्टर इज द राइट ऑप्शन। My sister flies a plane. She is a doctor, a pilot, a teacher. पढ़ाने वाला टीचर होता है और पायलट कौन होता है? जो प्लेन को उड़ाता है। So second one is the right option. Next is questions and answers related with this text. Why did Rakesh excite? Rakesh was excited because it was his last day of examination. Why did mother forbid Rakesh to disturb his brother? Rakesh's mother forbade Rakesh to disturb his brother because his exams were not yet over. What was the name of Rakesh's brother? राकेश के भाई का नाम भाई मुकेश था। The name of Rakesh's brother was Mukesh. What thing was not working in the room of Mukesh? Table lamp in the Mukesh room was not working. ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। Here you can see punctuation. What is punctuation बच्चों? Punctuation actually refers to the tools used in writing and to separate sentences, clauses and phrases. So their intended meaning should be clear. जो उनका मीनिंग है वो क्लियर हो जाए, इस तरह से हम पॉजेस इंग्लिश को लिखते समय लगाते हैं। तो बहुत सारे होते हैं हमारे, लेकिन यहाँ पर हम केवल आज 6 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे राउंड ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं इनको जो है करली ब्रैकेट्स बोलते हैं। और ये हमारा डैश होता है, ये हमारा हाइफन होता है, ये कोलन होता है और ये सेमी कोलन होता है। ये कोलन है, ये सेमी कोलन है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं बच्चों, जिनके बारे में हम आगे आने वाली कक्षाओं में जानेंगे। तो कैपिटल लेटर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम अब चर्चा कर लेते हैं। कैपिटल लेटर का यूज बच्चों, जैसे किसी सेंटेंस को हम जब शुरू करते हैं तो उसका जो पहला अक्षर होता है शब्द का, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसके अलावा पोयम का हर एक लाइन का पहला अक्षर जो होता है वो उसका लेटर जो है वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। और इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है बच्चों? हाँ, इसमें हम ये जान सकते हैं कि कैपिटल लेटर का यूज हमेशा प्रोनाउन आई को जो है कैपिटल में ही लिखते हैं और ओ को भी हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। ईश्वर के सारे नाम, जितने भी देवी देवता हैं उनके सारे नाम का पहला अक्षर, पहला लेटर कैसा होगा? कैपिटल। सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी विषयों का, सभी भाषाओं का, सभी लिपियों का जो भी पहला अक्षर होगा उसका जो लेटर होगा फर्स्ट, दैट शुड बी इन कैपिटल। इसके अलावा
और कहाँ कैपिटल लेटर का यूज होता है बच्चों? कैपिटल लेटर का यूज हम, जैसे ये आपका चैप्टर है, इसमें हेडिंग करने के लिए गद्य या पद्य या निबंध या जो भी टेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी जो हेडिंग है उसका फर्स्ट अक्षर भी हमारा कैपिटल होता है और हम इसको पूरा कैपिटल में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फुल स्टॉप। इसको हम पीरियड भी बोलते हैं। पीरियड मीन्स फुल स्टॉप, मतलब लगाना, जहां हमें रुकना है सेंटेंस को बोलते समय, और जब हम उसे बोलते समय स्टॉप देते हैं तो जब हम लिखेंगे तो वहां भी फुल स्टॉप का यूज होगा। और फुल स्टॉप कहाँ लगता है बच्चों? जैसे कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मैंने एक सेंटेंस बोला कि ही इज गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। यदि हम बोलेंगे कहाँ, कैसे, कि ही इज गोइंग टू स्कूल, तो हमने जब पूछा कोई किसी व्यक्ति से तो उसके पीछे हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? इंटरोगेटिव मार्क, जिसको हम प्रश्न सूचक चिन्ह भी बोलते हैं। और फुल स्टॉप कहाँ लगता है बच्चों? कुछ एब्रीविएशन होते हैं इंग्लिश में, जैसे MA, इनके बीच में भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। MLA, इनके बीच में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ये हमेशा कुछ ज्यादातर केसेस अपर उसमें होते हैं और लोअर केसेस में भी कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा उनके बीच में स्टॉप लगता ही है। जैसे ये वर्ड है EG, एग्जाम्पली ग्रेशिया, लेकिन इसको हम फॉर एग्जाम्पल जब बोलेंगे तो हमेशा इसके आगे क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। उम्मीद है आप अपनी होमवर्क करेंगे। The rest in next class. Till then, thank you. मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने